आगे बढ़ते हैं और बात सनातन पर लगातार हो रहे संग्राम की करेंगे कि स्टालिन ने जो विवादित बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बयान पर अड़िग हैं और कह रहे हैं बार बार कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और अब उनके जो पिता हैं एम के स्टालिन भी अपने बेटे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। और स्टालिन के बयान के बाद, उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद ए राजा ने भी सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, स्टालिन की बात कर ले, या आज ए राजा के बयान की बात कर ले, जिन्होंने HIV और कुष्ठ रोग जैसे सनातन धर्म को बताया है कि ये इससे जो है HIV और कुष्ठ रोग जैसा ही सनातन धर्म है। क्या कुछ कहा इन तीनों ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर हम करते हैं चर्चा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV। तो ये सुना आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने किस तरह से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, और मल्लिकार्जुन ने उदयनिधि स्टालिन का सपोर्ट भी किया है। अब बात करें ए राजा की, तो वो भी सनातन धर्म को कुछ भी भला बुरा कहते हुए बाज नहीं आए। बात करें वहीं के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई की, तो उन्होंने DMK को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, DMK का फुल फॉर्म बताया है और सनातन धर्म की विशेषताओं के बारे में बताया है। इनफैक्ट राहुल गांधी को भी लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा अन्नामलई ने, उस पर भी एक नजर डालिए। Please don't leaven any allegations that you don't know about. So the coming election we have challenged you. Let us fight on Sanatana Dharma. Let DMK say it is going to abolish Sanatana Dharma. We will say we will protect and preserve Sanatana Dharma. We will see where people of Tamil Nadu are going to vote. Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma. Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Fourth year, you say you are a Hindu. You say 90% of DMK party men are Hindu. Fifth year, you take a veil to say you are also a Hindu. So this drama Tamil Nadu has seen for the last many decades. When elections comes, you suddenly become an Amar and an Akbar and an Antony, which Mr. Rahul Gandhi ji for the last 17 failed attempts is trying to do the same thing, becoming Amar in one state, becoming Akbar in one state, becoming Antony in one state. The people of India and the people of Tamil Nadu and the whole of Bharat have read into your elitist, cabal, family-oriented, corrupt practices. Come 2024, DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. Good luck, sir. तो D for dengue, M for malaria and K for कोशी यानी कि मच्छर। तो ये अन्नामलई द्वारा दिया गया DMK का फुल फॉर्म। आपको कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से अन्नामलई ने DMK का फुल फॉर्म बताया है। देखिए, ये चीज़ें तो चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब मुझ पे अगर आरोप लगाएंगे, मुझ पे हमला करेंगे, तो मैं भी आप पे हमला तो करूंगा ही करूंगा। तो यही चीज़ है कि आपने जब डेंगू, मलेरिया, मच्छर बताया है, तो लीजिए आपका DMK का मतलब भी उन्होंने बताया। अभी यही चल भी रहा है कि आप विरोध तो ऐसे ही होता है ना, प्रतिक्रिया के कहते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो बस वही है कि जिस तरीके से आप बोलेंगे उसी तरीके से आपको जवाब मिलेगा।
पर ये जवाब अभी बढ़ेगा, अभी ये रुकने, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये रुकने वाला है। आप देखिए, अब ये तो हुआ कि अभी जवाबों के जवाब में क्या जवाब दिया जा रहा है। अब ये भी देखिए एफआईआर के जवाब में क्या एफआईआर हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो है एफआईआर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। अब ये कल हम लोगों ने बात की थी कि रामपुर में एफआईआर हुआ था, बिहार में भी एफआईआर हो गए उनके खिलाफ, फिर दिल्ली में भी एक एफआईआर हुआ, और एक जो है लखनऊ में भी एफआईआर हो गए। अच्छा, इनके जवाब में क्या हुआ कि डीएमके के एक व्यक्ति ने जो है वो एफआईआर दर्ज किया, ये लखनऊ में जो है परमहंस, क्या नाम है उनका, परमहंस आचार्य, उन्होंने जो ये कहा कि जो इसकी गर्दन लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ का इनाम जो है। अयोध्या के एक संत हैं महंत, उन्होंने कहा कि जो भी डीएमके उदयनिधि स्टालिन का सिर काट कर लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपए देंगे। अगर ये कम लग रहा है तो हम उसको अपनी तरफ से बढ़ा के देंगे। और अगर कोई ये नहीं करता तो वो 18 सितंबर को खुद जाकर उदयनिधि स्टालिन का सिर काटेंगे। उनकी तलवार जो है तैयार है। और उन्होंने तो सर तलवार से जो है वो फोटो को यूं मतलब अभी उनका एक प्रतीकात्मक जो है रूप जो तरीके से दिखाने की कोशिश की है। तो यही है इसका स्वरूप कि अगर आपको समझना होगा, जब आप एक पद पे रहते हैं तो इस तरीके से जब हरकत करते हैं, जब गैर जिम्मेदाराना टॉपिक पे आप इस तरह का बयान देते हैं, तो उससे आप जो है पूरे देश में आग लगाते हैं। और वही चीज अभी हो रहा है कि प्रतिक्रियाएं जो है वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट चलिए आइए हम आचार्य परमहंस की वो बाइट सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के सिर को लाने की बात कही है। सुनिए आचार्य परमहंस जी को आप। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि का पुतला है। आज हमने जो है प्रतीकात्मक पुतला दहन किया है और तलवारों से उनका सर कलम किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और इसके बाद बेशर्मी से उन्होंने बयान दिया कि वो अपने बयान पर कायम हैं। जबकि देखा जाए तो लाखों वर्ष पहले अगर देखिए तो एक ही धर्म था, सनातन धर्म। 2-2.5 हजार वर्ष से कुछ जो है मजहब, पंथ, धर्म बने हैं, पहले एक ही धर्म था। इसलिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन धर्म न कभी मिटा है न कभी मिट सकता है। हाँ, सनातन धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। क्योंकि अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह बोले होते तो अभी तक चिथड़े उड़ गए होते। यहाँ तक कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी चिथड़े उड़ गए होते। वो जानते हैं कि सनातन धर्म मानवतावादी है, अहिंसावादी है। लेकिन हम मानवतावादी हैं, लेकिन राक्षसों का वध भी हम लोग करते हैं। और वह राक्षस बन चुका है, उसका वध मेरे हाथों से होगा। तो ये आचार्य जी की बाइट लोगों ने सुनी और कहा कि गर्दन काट के लाएंगे। देखिए ये चीजें अब जो ये है भी कहा कि अगर आप धर्म में बोलते तो अब तक आपकी गर्दन उड़ चुकी होती। ये तो बात तो सही है, पर यही देखना होगा कि देखिए समाज में जैसा एक व्यक्ति करता है उसी का नतीजा दूसरे व्यक्ति के साथ होता है। और आज हम जो कहते हैं ना हिंदू सहिष्णु है या सद्भाव की बात करता है, पर उसके बावजूद मैं कह रहा हूं ये समय आ गया है। पहले इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है आप हिंदुओं के द्वारा नहीं सुनते थे कि मैं गर्दन काट, जो लाएगा उसको इनाम देंगे या ऐसा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि इधर मुझे 10-15 सालों से मैं देख रहा हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी हुआ कि अगर हिंदू धर्म पे लोगों ने बोला है या चीजें की है। कई बार तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे हैं जहाँ कोई पैर रख के फोटो खिंचवाता है या इस तरह के चप्पल बनाना, इस तरह मंदिर को खंडित कर देते हैं सरेआम और उसका वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये प्रतिक्रिया के ऊपर प्रतिक्रियाएं हैं कि जिस तरीके से मतलब इस्लाम में कुछ भी होता है तो फतवा जारी कर देते हैं। अब लोग ना मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही में क्षमता है कि आप कुछ कर सकते हैं या आप नेगेटिव अप्रोच अपना सकते हैं, हमें भी आता है नेगेटिव अप्रोच अपनाने। ये क्या है कि आपने डीएमके का नाम रख दिया,
अगर इस तरह से नाम क्यों रखा, पहले तो नहीं रखा था आपने। तो ये उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, जिस तरीके से आपने जो मतलब बोला है, उसके बाद इस तरह की चीज आई है। तो यही होता है, और इस चीज को जो है किसी भी नेता को ये बात समझनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं रहे, अभी भी अपने बयानों पे कायम है। और इन्होंने क्या कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैं तो जाति प्रथा पे बोल रहा था, और इन्हीं के बात करता हूं। अच्छा, जो अन्नामलई है, इन्होंने क्या कहा, एक बात और कही थी कि आप जो है जब चुनाव हो जाता है तो पहले साल जो है आप जो है पहले हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, फिर उसका खत्म करने की बात करते हैं, फिर समूल नाश की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब चुनाव का समय आता है तो फिर आप वही बात करने लगते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने आए, हिंदू धर्म, क्योंकि आप अपने आप को हिंदू बताने लगते हैं। और सच में अभी तक ये नहीं समझ में आया, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि इनका वास्तव में धर्म क्या है, क्योंकि कई बार नाम से लगता है कि चूंकि स्टालिन तो बेसिकली जो है वो रशिया के एक तानाशाह के हैं, या वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिनका स्टालिन नाम था, तो लगा कि जैसे ये थोड़े से लेफ्टिस्ट विचारधारा के होंगे तो शायद इसलिए ऐसा करते हैं। फिर लगा कि नहीं, एक क्रिश्चियन होंगे, और इन्होंने खुद जो है एक सभा में ये क्रिसमस का फेस्टिवल में इन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन क्रिश्चियन है या नहीं है अभी ये भी एक है, प्लस हिंदू है। तो आप असलियत तो अपनी नहीं पता। एक्चुअली उस एरिया में खासतौर से द्रविड़ सब लोग ज्यादा रहते हैं, तो इनको अभी वास्तव में समझ में नहीं आता, पर हर बार ये यही हरकत करते हैं, क्योंकि जाति प्रथा और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलकर ही ये आते हैं, और अपने लोगों के बीच में इनका कहीं ना कहीं ये छोटा सा पॉइंट ये पकड़ लेते हैं, और उनको उतनी लाइमलाइट मिल जाती है जो पूरे इनको 5 साल में नहीं मिली होती, नहीं मिलती है। और लेकिन देखिए ये समय होता है कि अब गद्दी मिल चुकी है, अब जब गद्दी मिल चुकी है तो लोगों के बीच सेंटिमेंट को बनाए रखना अपनी पार्टी से भी जरूरी होता है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। उनके जो पिता हैं एमके स्टालिन, अब उनको भी कहीं ये समझ में आ रहा है कि शायद ये बहुत बड़ी बात हो गई उनके बेटे द्वारा जो कही गई है, और इस वजह से अब उन्होंने उसका एक बकायदा ट्वीट करके ये पेश किया है कि नहीं, उनके कहने का मतलब कुछ और था। इतने 2 तारीख की बात जो है 7 तारीख हो गए जब बवाल बढ़ा है। पहले तो एमके स्टालिन इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, और अब जो है जब बवाल बढ़ा है तब उन्होंने जो है 4 पन्ने या 4 पन्ने का पूरा वक्तव्य लिखा है। अच्छा, उसमें भी आप देखेंगे जब उन्होंने लिखा कि जो है हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं, हम इसमें जो है बातें जो कही गई वो जाति प्रथा की बात कही गई है, उन्होंने भी ये बात कही, पर ओवरऑल फिर से घुमाते हुए उन्होंने क्या किया, सारा जिम्मेदारी आपने बीजेपी पे डाल दिया कि ये बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है, और जो शब्द है उसको गलत तरीके से घुमाया गया है, और आपने बीजेपी पे इस मुद्दे को कोशिश किया कि इसको किस तरीके से हम उन पे टाल सके कि जो हमने तो गलत नहीं कहा था जी, आप इसको तोड़ मड़ोड़ के जो है पेश कर रहे हो। और इसी के कारण से उन्होंने क्या किया, अमित मालवीय जो बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के प्रभारी हैं, उन पे जो है एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर दर्ज करवाने का जो है सिलसिला जो है लगा हुआ है, और इसी बीच में जैसे आचार्य परमहंस जी ने जो बयान दी, उनके ऊपर भी जो है डीएमके के जो विंग कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो है इस पे एफआईआर दर्ज करवाई है। जे देवसैनन ने आचार्य के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। क्या कुछ कहा है जे देवसैनन ने, उसको सुनिए, जो कि डीएमके से लीगल विंग कोऑर्डिनेटर है। Devasenan, I am the district organizer of the DMK legal wing. Today I had given a complaint against Ayodhya Sri Ramachandra Das Paramahansa Acharya. Last week he had circulated a video against our honorable State Minister through Udayanidhi Stalin, stating that if anyone brings the head of the minister, then the person who is bringing the head of the minister, he will be gifted with 10 crores rupees.
the video that has been circulated in the social media is offensive, and it is making an alarm in the public, and the total harmony among the people of Tamil Nadu has been disturbed. So today I had given a complaint. On the basis of the said complaint, a case has been registered by the Madurai City Crime Branch, and further investigation will be carried out by them. तो ये रही बात डीएमके के लीगल विंग कोऑर्डिनेटर की, जिन्होंने कहा तमाम आचार्य जी को लेकर, और ये कहा कि इस तरह की जो बातें हैं आचार्य परमहंस जी की, वो तेलंगाना के, तमिलनाडु के जनता के सद्भाव को प्रभावित करती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ जनता क्या सिर्फ तमिलनाडु में रहती है, पूरे भारत में नहीं है। और आप जो है जो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, मतलब तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु जी। तमिलनाडु की जो बात कर रहे हैं, वहां पर भी हिंदू रहते हैं, सनातन धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे जो है वो द्रविड़ या क्रिश्चियन या मुसलमान ही हैं। तो वहां पे भी आपने आहत किया, लेकिन अब एक्चुअली हमें हमेशा से यही होता है, हम जो है हमें अपना दर्द समझ में आता है, दूसरों का दर्द नहीं समझ में आता अपने है। दर्द के आगे दूसरों का दर्द हमेशा छोटा लगता है। तो वही चीज है कि आपको अगर तमिलनाडु के लोगों की भावना की आहत की चिंता है, तो पूरे देश की भावना को जब आहत कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो लेकिन जो ये एक बड़ी मतलब विडंबना ही कहेंगे कि आप एक तरफ कहते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है, और काफी लोग, एक व्यक्ति ने भी तो मतलब कहा था कि उन्होंने जो बोला वो हम तो इसका सपोर्ट नहीं करते। हाँ, कांग्रेस के किसी लीडर ने बोला कि हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो बोल सकते हैं। अच्छा। तो जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसने भी बोला, बिल्कुल, तो आप सपोर्ट आचार्य कीजिए। ने भी बोला, तो बोला, इसमें दिक्कत क्या दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। और बोल भी दिया तो क्या ही है, जब स्टालिन बोल सकते हैं और हमारी जनता का सद्भाव जो है नहीं प्रभावित हो सकता है, तो आचार्य के बोलने से क्यों प्रभावित हो रहा है? तो यही समस्या है। अब देखिए क्या है कि ये एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर फतवा जारी कर दो, वहां उसको मारने की बात कर दो। इससे होता क्या है कि अब वो एक न्यूज बन जाता है, न्यूज बनता है, वो फेमस हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड चल गया। अब केस मुकदमे का ट्रेंड है कि कोई कुछ बोले उस पर केस कर दो, उसके बाद केस मुकदमा से नतीजा क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन वो आना जाना और उस पे जो है आपको हाजिर तो होना पड़ेगा। और ये जो है अभी स्टालिन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। आपने एक केस किया है, एक अमित मालवीय पे, एक परमहंस पे, पर आप पे जो 4 से 5 केस हो गए, दिल्ली में भी हो गए, यूपी में भी हो गए और बिहार में भी हो गए, और एक तमिलनाडु में भी है। तो जब है 4 जगह हो गए और आप सरकार में, आप तो भाग भी नहीं सकते, कहां भाग के जाओगे? और भागोगे तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी मतलब विपक्षियों के लिए, जो आपके विरोधी हैं, क्योंकि आप भाग जाओगे तो सबसे अच्छा है। तो ऐसे कंडीशन में आप घूमते रहिए सभी जगह, क्योंकि आना तो पड़ेगा। जब राहुल गांधी को सूरत में जाना पड़ा ना, बिल्कुल, और जाके मानहानि का केस झेलना पड़ा था, तो केस तो झेलना पड़ेगा। तो ये जो है अब केस का प्रोसेस चलेगा, लेकिन ये पूरा अभी देखिए, शुरू में लगा कि एक दिन का मामला है, ये चल जाएगा, लेकिन लगातार हम उसी दिन से, मुझे लगा 4 तारीख से डेली हम चर्चा जो है इस पे कुछ ना कुछ नया चीज होता है और हम चर्चा करते हैं। अभी एम.के. स्टालिन ने जिस तरीके से अपने बेटे का पक्ष लेते हुए जो है सामने आए हैं, और उन्होंने सारा कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो बिल्कुल सही बोला, उसने जाति प्रथा की बात की है, ना कि सनातन धर्म को क्या बोलते हैं, नाश करने। कहने का मतलब यह था कि उन्होंने हिंसा की बात नहीं की, किसी भी तरीके से ये नहीं कहा कि जो है सनातन धर्म के लोगों को मार देना चाहिए, ये बात नहीं की। उन्होंने बदलने की बात कही है, जाति धर्म की बात की है। तो उन्होंने अपना तर्क इस तरह से दिया, और वो कोट करते हुए दिया कि उदयनिधि स्टालिन ने भी ये बात कही थी कि खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि हिंसा के द्वारा उसे खत्म किया जाए। जैसे अगर मोदी जो है कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब वो आतंक की बात नहीं करते, उनको खत्म जो है वो उन्मूलन अलग तरीके से होता है, तो रेफरेंस देते हुए। लेकिन आज आपको क्यों आना पड़ा? देखिए अभी अब उसके पीछे का एक और रीजन है कि कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर बन रहा है। खासतौर से देखिए, ममता बनर्जी ने कल क्रिटिसाइज किया,
कल केजरीवाल भी आके सामने क्रिटिसाइज किए, अभी जो है संजय राउत भी आए, जी, संजय बिल्कुल। राउत ने भी ये बात कही। संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और 90 करोड़ सनातनियों को लेकर बात कही है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, उस पर एक नजर डालिए। देखिए, कोई माहौल गरमा नहीं गया है। हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने हैं। मारन साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपने तरफ रखिए, अपने राज्य में रखिए। ठीक है, तो ये बात हुई संजय राउत की, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इतना सब कुछ कहना कहीं ना कहीं गलत है। और 90 करोड़ सनातन जो है रहते हैं इस देश में, उनकी बात की, और ये जो बयान है ये बहुत गलत है उदयनिधि स्टालिन की तरफ से। लेकिन देखिए, बात तो यह है कि ये बयान उनको देना जरूरी है। अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ठीक है, वो अभी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने हिंदुत्व की पहचान को छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे कंडीशन पे मैंने आपको पहले दिन ये कहा था कि ये शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि यहाँ पे कैसे अपने आप को किनारा करेंगे। या तो फिर आप उनको कहेंगे कि माफी मांगे, या नहीं तो फिर आपको या तो हटना पड़े, कोई ना कोई तो रास्ता। लेकिन ऐसी चीज में यही होता है कि फिर वो एक बयान दे के बच जाते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया कि संजय राउत जो है, चूंकि वहां कोई और कुछ बोलता नहीं है, बोलने का काम पूरी तरह से प्रवक्ता एक वही है, उनके अलावा आए दिन हर दिन उनका कुछ ना कुछ बयान आते रहता है, बोलते ही रहते हैं। हाँ, तो बस वही है कि उन्होंने जो है इस पे बयान दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई है कि फिर से जो है सामना जो इनका मुख्य पत्र है उसमें जो है इन्होंने जो है कहा है कि इसके लिए दोष फिर से कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री को देने की कोशिश की है। और लेकिन साथ में इन्होंने कहा कि हमारी धरती से, जो मुझे एक और भी बड़ी चीज है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म पृथ्वी पर सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इस धर्म की स्थापना 5000 वर्ष पहले हुई थी। अनेक संकटों, तूफानों और चोटों के बाद भी इस धर्म का ध्वज लहरा रहा है। ये सामना में उन्होंने लिखा है। भारत महाकाल से अब तक अनगिनत लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। तलवार के बल पर जो है इस्लाम धर्म भी आया और उसने जो है सनातन को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन जो है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज भी जो है सनातन धर्म का पताका लहरा रहा है। लेकिन मैं इस पे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सभी लोग ये कह रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी यही कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैं कहता हूं कि कैसे फर्क नहीं पड़ा। सनातन पहले कहां तक था? अफगानिस्तान से जो हम कहते हैं गांधारी, महाभारत के समय जो है गांधारी जो थी वो कहां से थी? अफगानिस्तान से शादी हुई थी। उस समय हिंदुओं का राज था। शकुनी कहाँ के थे? गांधार के थे। या बहुत समय तक कहा जाता है कि मौर्य काल में भी हमारा शासन वहां तक था। पर जैसे ही इस्लाम उदय हुआ, उसके बाद धीरे धीरे देखिए कि हम कहाँ आ गए। अफगानिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान भी हमारा चला गया। अब हिंदुस्तान में भी आधे से ज्यादा तो है, मतलब एक अगर कहा जाए तो आज के डेट में जो है आबादी जो है किसकी आ गई है? मुसलमानों की हो गई, क्रिश्चियनों की हो गई है। तो क्या हमारी संख्या धीरे धीरे घट नहीं रही? और मात्र सोचिए कि 1400 साल हुआ है अभी लगभग इस्लाम की उत्पत्ति का। 1400 साल में आज दूसरी सबसे बहुसंख्यक आबादी जो पूरे विश्व में उनकी हो गई। क्या हमारे वास्तव में सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा? पताका लहरा रहा है सिर्फ भारत में, वो भी जो अगर आज की डेट में हम कहें तो अगर ओवरऑल हम 150 मानते हैं कि अगर 150 करोड़ भारत की आबादी है तो उसमें टोटल मिला के अभी 80 से 90 करोड़ ही हैं हम।
पर धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले से जागरूकता बढ़ी है लोगों में, लेकिन बार बार ये सनातन धर्म पे तो हमले हो रहे हैं। भले आप कहते रहे कि हमारे सनातन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर हम सिमट रहे हैं। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी, और उद्धव जी को तो खास तौर से समझनी पड़ेगी। जब आप आपको हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक डायलॉग के टाइप का हो गया। सनातन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हम पहले भी थे, हम सबसे पुराने जरूर हैं, लेकिन हम पे फर्क लगातार पड़ रहा है। आप एक देखिए, पारसी धर्म जो ईरान से चला था, आज उसका एग्जिस्टेंस लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुका है। भारत में ही सिर्फ पारसी बचे हैं, वो भी कुछ संख्या, गिने चुने संख्या जो है पारसियों की बची है जी। तो अगर हम अपना विरोध जताना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से, हालांकि सभी यही लिखते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से, मैं तो कहूंगा कि सामना में जो लिखा गया ये लीपा पोती है पूरी तरह से, उससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं अभी, क्योंकि गठबंधन का फायदा लेना है, इसलिए जो है ये चीजें कही जा रही है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला जुला के एक सीधा साधा कि हाँ कुछ तो बोलना था, चलो यही हम बात करते हैं। लेकिन एक बात और है, इनकी बात करें तो जैसे देखिए केस जो उन पे हुआ, परमहंस पे हुआ या बाकी चीजों पे हुआ, यहाँ एक और चीज हुई है कि जो एक यूट्यूबर थे बिहार के, मनीष कश्यप को जो जेल हुआ है, जो अभी गिरफ्तारी की गई थी, वो तमिलनाडु के मामले में ही की गई थी। वहां पे एक केस हुआ, मतलब मामला हुआ था जिसमें कहा जाता है बिहारियों को वहां से जो है मारा जा रहा है और चीजें के, उस पे इन्होंने कमेंट किया था, जिसके कारण से इन पे तमिलनाडु में एनएसए लगाया गया, नेशनल क्या कहते हैं, एनएसए की धारा होती है, एक्ट होता है, उसके तहत जो है उनपे किया गया और वो जेल में बंद है। आज जो है यही चीज के कारण से उनकी माँ जो है, उन्होंने जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखा है जी उनको, और राष्ट्रपति को पत्र लिख के मांग की है कि उदयनिधि स्टालिन पे भी यही धारा लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि मेरे बेटे के अगर एक स्टेटमेंट से कहा गया कि दो राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई और मतलब दुश्मनी वाले भाव पैदा हो गया कि बिहार और तमिलनाडु में, तो ये उनके स्टेटमेंट से तो पूरे देश में ये स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या ऐसे पे उनके खिलाफ जो है एनएसए नहीं लगना चाहिए? तो ये भी एक आरोप आया, और ये सच में मुझे लगता है कि एक विचारणीय स्टेटमेंट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नफरत तो फैलाने का काम आप भी कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि नेताओं पे कितना भी आरोप लगा लो, वो सिर्फ न चुनाव के समय मुद्दे रहते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं, कई मुद्दे ऐसे हैं ना, जैसे आप किसी नेता से बोलेंगे तो वो उनका सीधा स्टेटमेंट होगा, अरे नहीं अभी रहने दो, ये मुद्दा अभी काम का नहीं है। तो ये मुद्दा कब काम आएगा? जब इलेक्शन शुरू होगा। इलेक्शन होगा तो बहुत सारे मुद्दे जन्म ले लेते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। इन सारी बातों पे जो है टिप्पणियां होनी शुरू हो जाती है। इलेक्शन का मोड ऑन हो जाता है और उसके बाद वो जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है कि नहीं अब इसको रहने दीजिए, अब तो इलेक्शन है ही नहीं। इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सवाल तो बनता है कि क्या एक मंत्री के बेटे होने के कारण, इनका मुझे लगता है कि मनीष कश्यप की मां का सवाल जो है बिल्कुल जायज है कि आप जब एनएसए की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत जो भी अगर धाराएं लगाई गई है, और दो राज्यों में जब टकराव पैदा हो रहा है, तो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा वो देश में टकराव की स्थिति क्या नहीं पैदा करती? ये एक माँ का सवाल है राष्ट्रपति मुर्मू से। खैर स्मृति ईरानी ने भी इस पे चर्चा की है। स्मृति ईरानी ने जो है आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक जनसभा में गई और वहां अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी जी ने, पहले उसको आप सुनिए। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक
कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान कृष्ण के जयकारे इतने ऊंचे होने चाहिए कि सनातन धर्म को चुनौती देने वालों तक पहुंच जाए। ये घोष जयकारा जो है स्मृति ईरानी की तरफ से लगाया गया सनातन धर्म को लेकर, और कहीं ना कहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो बहुत अच्छा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है उदयनिधि स्टालिन को लेकर, और दिखाया है कि सनातन धर्म जो है कम नहीं है। किसी भी मामले में आप अगर डेंगू मलेरिया की उससे आप तुलना करते हैं तो खैर। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी तो भाजपा की ओर से ये चीजें और बढ़ेगी। जैसे कल भी हमने बताया था कि स्पेशली इस मुद्दे को भाजपा की ओर से भी कहा गया है कि आप उठाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं और पुरजोर तरीके से बोले। तो अभी ये आप देखिएगा पूरे भारत में अभी ये अच्छा खासा मुद्दा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे पूरे मुद्दे पे कहीं से कांग्रेस का कोई खास जो प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और वो पूरी तरह से चुप बैठे हैं। कारण ये भी है ना कि अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके बेटे भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब बेटा ही बोल रहा है तो आप कैसे डिनाई कर पाएंगे? और अगर बोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको उनको भी हटाना पड़ेगा। अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो ये भी एक समस्या है। और जो ये अन्नामलई ने जो बोला, अन्नामलई जी, उन्होंने तो कहा है कि एक तो राहुल गांधी जो है वो अमर अकबर अंथोनी हो जाते हैं। एक समय वो एक स्टेट में जाते हैं तो खुद को क्रिश्चियन की तरफ बिहेव करते हैं, दूसरे में जाते हैं तो मुसलमान की तरफ, और फिर जो है वो हिंदू बन जाते हैं। तो उनका तो यही नहीं पता चलता कि वो कर क्या रहे हैं। तो और यही बात सच में है कि कांग्रेस जो है, उन्होंने स्टेटमेंट भी आया इनका पवन खेड़ा का कि हम तो सर्वधर्म समभाव हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो इस तरह की चीजें, पर अभी तक जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होना चाहिए था वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। खास तौर से जो है ये बहुत जरूरी होता है एक स्टैंड क्लियर करना, लेकिन नहीं आया है। जब देखा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से आ चुकी है, अभी संजय राउत की बात कर ले उनकी तरफ से भी आ चुकी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चूक रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष ही इस तरह की बात कर रहा है और फिर उनके बेटे इस तरह की बात कर रहे तो क्या ही बोलेंगे राहुल? हाँ, तो समस्या तो यही है कि इसलिए जो है वो अब अगर वो अभी देखिए प्रॉब्लम यह है कि राहुल अगर कुछ बोलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो फिर यही हो जाए कि तो फिर तो आपके अध्यक्ष ने बोला है तो आप दोनों में कैसे तालमेल नहीं है, तो फिर वही दिक्कत होगी। इसलिए, और राहुल गांधी तो अभी है भी नहीं। हाँ, वो तो अभी दौरे पे हैं, यूरोप के दौरे पे। तो देखते हैं आने के बाद हो सकता है कि कोई एनर्जी बूस्ट उनके अंदर मिल जाए और फिर उसके बाद वो तो पवन खेड़ा ने कहा है कि अभी जो है एक यात्रा के 1 साल हुए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि यात्रा अभी भी जारी है और आने के बाद जो है उम्मीद है कि फिर से वो शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, तो ये चलेगा। बिल्कुल।